سال کی سزا ہوگی، جیل میں رہیں گے اور 7 لاکھ روپے کا جرمانہ آپ کو دینا ہوگا. یعنی آپ ڈرائیور ہے، آپ کی پرسنل گاڑی ہے تو بیچ کر جرمانہ بھریے اور سزا بھی 10 سال کی. یہ دیش کے اندر ڈرائیوروں کے لیے، اسی لیے ڈرائیوروں نے ہڑتال کر دیا اور پھر پیٹرول پمپ بھی جگہ جگہ پر بند کر دیے گئے. یہ قوانین پوچھ کر نہیں بنایا. وہ کرسی اقتدار پر بیٹھنے والے، وہ قاتل، وہ مجرم جو اس دیش کی ترقی نہیں چاہتے، ہم کہہ سکتے، اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کرسی اقتدار پر ان کو بٹھایا، ہمارے اور آپ کے ووٹ سے کرسی پر بیٹھے ہیں وہ. اور پھر کہتے ہیں کہ ایک بھویہ مندر کے نرمان کے لیے ہم 1000 ٹرینیں فری چلائیں گے. چلاؤ. بچے جب ایگزام میں جاتے ہیں تو ایک بھی اسپیشل ٹرین نہیں چلاتے. اب رام مندر کی تعمیر اور اس کے ادگھاٹن کے لیے 1000 ٹرین. جب سوچ اس حد تک گر جائے تو آپ اس ملک کو ترقی کی طرف نہیں لے کر جا سکتے. الگ مسئلہ ہے بھائی، آپ نے بنا لیا غصب کر کے، اچھی بات ہے، شروعات کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ عوام کو، جنتا کو، لوگوں کو بے وقوف نہیں بنا سکتے، پریشان نہیں کر سکتے. پوچھے بغیر قانون بنا دیا جاتا، پوچھے بغیر قانون امپلیمنٹ کر دیا جاتا، لولی پاپ تھما دیا گیا کہ یہ قانون ابھی نافذ نہیں ہوگا. جب نافذ نہیں ہوگا تو بنایا کیوں؟ راجیہ سبھا میں پاس ہو گیا، لوک سبھا میں پاس کر دیا، راشٹرپتی جی مہر لگا دیے. اب کیا قانون میں؟ قانون تو بن گیا. اب کون سی لولی پاپ تمہارے کہ نہیں ڈرائیور ہڑتال مت کرو، جاؤ. اور ہم مسلمان ہیں کہ آپس میں لگے پڑے. ابھی رام مندر تو بن گیا، اس کی ادگھاٹن ہے 22 جنوری کو، لیکن ابھی مسجد کی شروعات بھی نہیں ہوئی. اب پتہ ہے جھگڑا کیا شروع ہو گیا مسلمانوں کے بیچ میں؟ ایک سمودائے کے لوگ، بریلوی طبقے کے لوگ ایک لیٹر پیڈ لکھ دیتے. کن کو؟ رکشا منتری کو. شاید راشٹرپتی کو لکھا ہے کہ رکشا منتری کو لکھ دیا. ان کو لکھا ہے کہ ہماری مسجد کی، یعنی بابری مسجد کے عوض میں جو مسجد بننی ہے، جو کئی ایکڑ زمین دی ہے، وہ زمین ابھی فائنل نہیں ہوئی ہے. زمین کہاں ملے گی یہ فائنل نہیں ہے. لیکن ابھی سے مسلمان لڑ رہا ہے گوشت مچھلی کھا کر. ابھی سے مسلمان آپس میں لڑ رہا ہے. ایک سمودائے کہتا ہے کہ اس مسجد کی بنیاد ہم ڈالیں گے، دوسرا سمودائے کہتا ہے کہ نہیں ہم زیادہ شریف ہے تم سے، ہم ڈالیں. تیسرا سمودائے کہتا ہے کہ نہیں ہم ڈالیں گے. لیٹر پیڈ نکالتا ہے، کیا گزارش کرتا ہے، رکشا منتری کو کہتا ہے کہ آپ مکہ مسجد کے حرمین شریفین، مکۃ المکرمہ کے امام سے، ان کے ہاتھوں سے مسجد کی بنیاد نہ ڈالیے، کیونکہ وہ مشرک ہے، وہ گستاخ رسول ہے، وہ کافر ہے. ہم زیادہ حقدار ہیں، ہم صوفی ہیں. ٹھیک ہے، آپ ابھی آئے میدان میں. 30 سال سے جب اس مسجد کا کیس چل رہا تھا، بابری مسجد کا، تو اس وقت کہاں چھپے ہوئے تھے؟ بل میں گھسے ہوئے تھے آپ. تب کیوں نہیں آئے؟ اب آئے. ابھی مسئلہ یہ ہونا تھا کہ سب مل کر پہلے اس مسجد کو بناتے. ایک طرف تو مسجد کی جگہ پر مندر بن کر تیار ہے اور ایک طرف بنیاد کی اینٹ بھی نہیں ڈالی گئی. ابھی سے انتشار شروع. سب سے بڑی ذلت کی وجہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے، جو جیل میں تھے، مالٹا کے جیل میں، انہوں نے جیل میں جا کر جب آئے باہر تو دارالعلوم دیوبند کے کسی صحن میں بیٹھ کر انہوں نے یہ بھاشن دیا تھا، بلکہ وہاں کے پروگرام میں انہوں نے اسپیچ دی تھی اور کہا تھا کہ میں قید میں تھا، لیکن قید میں جانے کے بعد میں نے غور و فکر کیا، مجھے مسلمانوں کی ذلیل ہونے کی 2 کارن سامنے میرے نظر کے سامنے آئے. ایک تو ایک کہ مسلمان قرآن سے دور، دوسری یہ کہ مسلمان آپس میں لڑتا ہے، آپس میں جھگڑتا ہے. دیکھ لیجئے، بیٹی مرتد ہوئی، عالمہ بیٹی مرتد ہو گئی، کافر بن گئی، مشرک بن گئی.
आलिमा पढ़ी लिखी लड़की, उस पर कोई लेटर पैड नहीं निकाला इन बहरूपियों ने, इन नालायकों ने, इन शिद्दत पसंदों ने, कि बेटी मुर्तद हो गई। आलिमा बेटी जो मदरसे में पढ़ रही थी, उनके ऊपर कोई लेटर पैड नहीं निकाला। लेकिन अभी मस्जिद बनी नहीं, जिनके 33 करोड़ खुदा है वो मंदिर बना चुके। तुम्हारा एक खुदा है तो एक मस्जिद नहीं बनी। तुमसे लड़ने पे तुले हुए। यही वजह है कि अल्लाह की मदद नहीं आ रही। गजा में 12,000 बच्चे मार दिए गए, 35,000 जवान और बूढ़ों की लाशें बिछा दी गई। गजा पट्टी पर डेली बम बरसाया जाता, 40 अरब टन बारूद गिराया जा चुका है गजा पट्टी पर। इसराइल के जरिए से किसी की जुबान नहीं खुलती, अल्लाह की मदद नहीं आती। क्यों नहीं आती? हमारे और आपके आमाले बद की वजह से। क्या दुनिया के अंदर मुस्लिम कौम ताकतवर नहीं? पेट्रोल मुसलमानों के पास, डीजल मुसलमानों के पास, गैस मुसलमानों के पास, सोना चांदी मुसलमानों के पास, सब कुछ मुसलमानों के पास। उसके बावजूद भी अंग्रेज गैस किससे खरीदते? पेट्रोल डीजल किससे खरीदते? मुसलमानों से खरीदते। लेकिन फिर भी मुसलमानों को गुलाम बना लिया है इन लोगों ने। और मुसलमान इनके पीछे इन यहूदी, इन इसराइली और इन मुशरिक, इन खुराफाती इंसानों के पीछे। मेरे भाइयों, बस इतना कहूंगा, आपके इस स्टेज से एक पैगाम देने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने अखलाक को बुलंद कीजिए, अपने आप को जलील मत कीजिए, आने वाले मेहमान का सम्मान कीजिए। अल्लाह के नबी की हदीस भी है, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल्युक्रिम ज़ैफा। जो आदमी ईमान रखता है अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, तो वह अपने मेहमानों की इज्जत करता है। और मेहमान में आपका मुस्लिम भी हो सकता, हम भी। जितना महत्व मेरा है उतना ही महत्व एक माइक वाले का है। जितना सम्मान मेरा होना चाहिए उतना ही सम्मान उनका भी होना चाहिए। वो आया माल सामान लेकर, खाना खाया कि नहीं खाया, आपका अखलाकी फरीजा आप पूछें कि भाई साहब आपने खाना खाया। हम कहीं जलसे में जाते तो हमारा जो ड्राइवर होता है, हम सबसे पहले उनकी चिंता करते हैं। उनको बोलते हैं कि भैया पायलट साहब आप खाना खाए कि नहीं, आपको चाय पीनी है कि क्या। प्रोग्राम में पहुंचे तो सबसे पहले जलसा वाले को कहते हैं भाई हमारा जो ड्राइवर है पहले उसको खाना खिलाओ। यह अखलाक का तकाजा है। हमारे अकाबरीन में क्या, अल्लाह के नबी में ये चीज कूट कूट कर भरी हुई थी। कोई मेहमान आया बाहर से, उनका एहतराम करते थे। उनसे कोई चूक हो जाए, गलती हो जाए, यकीनन गुस्सा आता है, आपको भी आता है, हमें भी आता है, लेकिन उसी गुस्से पर कंट्रोल करना, इसी पर तो अल्लाह अज्र देता है, इसी पर अज्र देता। इसीलिए अल्लाह के नबी की हदीस इमाम बुखारी ने जिल्द साने के अंदर रिवायत की है कि अगर तुमको आखिरत पर ईमान है, अल्लाह के नबी पर ईमान है, तो फल्युक्रिम ज़ैफा, अपने मेहमानों की ज़ियाफत करो, अपने मेहमानों के साथ इज्जतदारी का मामला पेश करो। ये चीज़ें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और साथ में सहाबाए किराम ने पूरी ईमानदारी के साथ निभा करके दिखाया है। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई आदमी आया है, उससे कोई चूक और गलती हो जाए, एक अदना से मशीन के ऊपर आपने उनको थप्पड़ मार दिया। उनका एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप उनको नहीं मार सकते। वो कानूनी अगर कोई कार्रवाई करना चाहे तो उसको अधिकार है, वो कर सकता है। आप मान हानि, किसी की इज्जत और किसी को डेमोरलाइज नहीं कर सकते, किसी को भी नहीं कर सकते, आप कहीं पर भी नहीं कर सकते। अभी तो इस देश का मामला उल्टा पुल्टा, एक तो नफरत की बादलें वैसे डालने की कोशिश की जा रही, तुम हिंदू तुम मुसलमान, हिंदू मुसलमानों का बड़ा इस नफरत की बातें फैला दी गई। हम इस हिंदू मुसलमान नफरती दीवार को सिर्फ मोहब्बत से तोड़ सकते और कोई रास्ता नहीं। हमारे पास है कुछ नहीं, जितने भी अगियार के पास, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी अगियार के पास, हमारे पास क्या? हमारे बच्चियां क्यों मुर्तद हो रही? स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते, हमारे पास स्कूल कॉलेज नहीं। क्यों? हमने सिर्फ
गोश्त खाया, हमने सिर्फ मच्छी खाया। योगी जी की अम्मा को जिबा कर दिया, गाय माता को काट के खाया। कभी नहीं सोचा कि हमको बड़ी यूनिवर्सिटी बनानी, कभी नहीं सोचा कि हमको कोई मदरसा आलीशान बनाना है। पूछिए आपके इस मदरसे के मोहतमिम साहब से, पूछिए कितना बेचारा मेहनत करते हैं तब जाकर एक मदरसा चलता, और सोचते हैं कि ये मदरसा है, मोहतमिम साहब चंदा करते हैं। अगर आलिम मदरसा ना हो तो गांव मुर्तद हो जाएगा, कई खुदा की इबादत करने लग जाएंगे, आप मुशरिक बन जाएंगे, काफिर बन जाएंगे। जो धार्मिक है जरूरी है, उनको चलाने के लिए हमारे उलमा कितनी मेहनत करते। हमारे पास कुछ नहीं तब भी हम सीना तान कर चलते। बड़े बड़े बिजनेस, बड़े बड़े कारोबार में हमारे लोग नहीं, हमारे बरादराने वतन है, और हम अपने आप को तुर्रम खां समझते। नहीं मेरे भाइयों, मेरे मुसलमानों, अगर कामयाबी चाहते हो, गुमराही से बचना चाहते हो, तो कुरान को और हदीस को मजबूती के साथ पकड़ो। जहां पर मदरसा है, जहां पर मकतब है, कुरान की तालीम होती है, उसको मजबूती के साथ आगे बढ़ाइए। आप ज्यादा नहीं, मदरसे की तामीर और तरक्की के लिए ज्यादा नहीं मांगा जाएगा। आइंदा के लिए एक तरतीब बनाई। आपके पूरे गांव में अगर 300 घर है तो हर घर से 100 रुपए भी अगर आप पेश करेंगे तो 10, 15, 20 हजार रुपए महीना जमा हो जाएगा। हमारे जो असातिज़ा जो चंदा करते, उनका टेंशन खत्म हो जाए। 11 अरब से बनाना वो मंदिर कुछ ही साल में बनकर तैयार। अभी हमारे मस्जिद को बनाने के लिए 1 करोड़ भी पैसा जमा नहीं हुआ। चंदा करेंगे लोग, तब जाकर वो मस्जिद की काम को शुरू करेंगे। बातिल ताकत तो है ही आपको मिटाने के लिए, खत्म करने के लिए, लेकिन हमारे अंदर भी वो जुस्तजू, वो मोहब्बत और वो शौक नहीं है। हमारे नौजवान कारोबार नहीं करना चाहते, नबी के तरीके को अपनाना नहीं चाहते। पैसा हो जाए मोबाइल खरीदेंगे, 50,000 रुपया हो जाए। सबसे ज्यादा बेहतर वीडियो कौन से मोबाइल से शूट होता है, या सबसे बेटर किस मोबाइल के अंदर सेल्फी अच्छी आती, वही समझते हैं, वही खरीदते। हमारे जवान इसमें परेशान, कुछ नहीं बनाते। फेसबुक पे पेज जरूर बनाते, कुछ नहीं बनाते। व्हाट्सएप में ग्रुप जरूर बनाते, और फिर पूरे दिन ग्रुप बाजी करेंगे। हैप्पी न्यू ईयर मनाएंगे, सेल्फी लेकर भेज देंगे, ये देखो मैंने मटन बनाया, लो खा लो, तुम्हारी दावत। वो भी देखकर मुंह में पानी आ जाता, वो भी कहता लो भैया दावत पूरी हो गई। ऐसा जमाना चल पड़ा है। जमीन पर उतरकर काम करने की जरूरत है। जमीन पर उतरकर, बहुत हैं तकरीर करने वाले, बहुत हैं स्पीचेस देने वाले, लेकिन जमीन पर गांव लेवल पर उतरकर काम करने की जरूरत है। रिफाही काम की जरूरत। आपके इसी गांव में अगर 5 बच्चियां हैं, गरीब है, उसका बाप शादी कराना चाहता लेकिन पैसे नहीं, कैसे होगी शादी बताइए? अल्लाह आएगा जमीन पर, जिब्राइल आएंगे नहीं। अखलाकी फरीजा है कि चंदा जमा करके एक सोसाइटी बनाकर पूरे गांव में आप उस गरीब बच्चियों की शादी कराइए। एक बूढ़ा आदमी है, एक बूढ़ी औरत है, उनका कमाने वाला कोई नहीं है, मिसाल के तौर पर आप ही के गांव में है, उसको 10,000 रुपए की ट्रीटमेंट की जरूरत है, इलाज की जरूरत, कहां जाएगी? वो मांगने जाएगी क्या? नहीं, आपके गांव में सोसाइटी होना चाहिए, आपके गांव के अंदर में लोगों की एक जमात होनी चाहिए ताकि उसकी मदद की जाए। मैं शरीयत की रोशनी में बोल रहा हूं। अल्लाह के नबी ने यह तंजीम बनाई थी, अल्लाह के नबी ने यह सोसाइटी बनाई थी, और यह सोसाइटी, ये तंजीमें हमारे भारत के अंदर, अखियार के अंदर मौजूद। यहूदी इतने ताकतवर ऐसे नहीं बने, 18 तंजीमें काम करती। अगर एक यहूदी को अगर जर्रा बराबर एक कतरा खून बहे तो सारी तंजीमें एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उनके हाल पूछने के लिए तैयार रहती। हम लड़ते, मरते हैं, मार दिए जाते, कोई पूछने के लिए नहीं आता है। अभी कुछ दिनों, 1.5 हफ्ता पहले सीवान बिहार की धरती में एक बाप अपने बेटे को लेकर जाता, छोटा बेटा है, हाथ पकड़ कर चल रहा, सामने से आते हैं
नालायक, हराम खोर, वो डाकू, वो कातिल, वो गोली मारते हैं। बच्चे के सामने बाप के सीने में गोली दाग दिया जाता है। और जुल्म तो ये कि अभी तक पकड़ा नहीं गया, पकड़ते नहीं हैं उनको। और तकरीरें करने वाले करते हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। तकरीर की जरूरत नहीं, कार्रवाई की जरूरत। केस बुक होना चाहिए। वो जो बेवा हुई है, उसकी बीवी, बच्चे यतीम हुए, उसके घर तक पहुंचिए, उनको फंड कीजिए। उनको लगे कि अगर मेरा शौहर मर जाए तो हमारी कौम पीछे खड़ी हुई है, कोई नहीं आता। भारत के अंदर राजस्थान में एक शख्स को मारा गया, कत्ल किया गया। उसका नालायकों ने कत्ल किया, हराम खोर थे वो, शराबी थे, कबाबी थे, कौन थे। कहा गया कि माइंड उनका हाथ था मुसलमानों के जरिए से। लेकिन पता है 50 लाख रुपए चंदा करके उनकी मदद की गई। उस राजस्थान में मुसलमान मार दिया जाए, मॉब लिंचिंग हो गया, 50 रुपए तक उनके घर पे नहीं पहुंचा पाते हम लोग। मेरे भाइयों, आलमी सतह की बातें हो रही है, शायद आपके जहन में ना उतरे इसलिए कि हिंदी शायद कम समझते, लेकिन बहरे कैफ एक दर्द है जो बयान कर रहा हूं। पूरे भारत में जाना होता है, स्थिति देखकर, हालत देखकर बहुत ज्यादा तकलीफ होती है कि फ्यूचर में, मुस्तकबिल में इस कौम के साथ क्या होगा। इसीलिए हम हर जलसे में कहते हैं कि कुरान से रिश्ता मजबूत कीजिए, मदरसों को तामीर कीजिए, तालीमी इदारे बनाइए, और आने वाली जो आपकी नस्ल है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आंख बंद करके उन बच्चों को पढ़ाइए बस, और कुछ मत कीजिए। वो बच्चा आपका तालीम याफ्ता हो गया तो दुनिया के अंदर इंशाअल्लाह वो तरक्की के मनाजिल जरूर तय करेगा। बस एक ही रास्ता है, तीर तलवार लेकर लड़ने की जरूरत नहीं है। अपने बच्चों को बस पढ़ा दीजिए, तालीम याफ्ता बना दीजिएगा, तो कभी अगर इस तरह का मामला आएगा, गुस्सा आएगा, तो पढ़ा लिखा होगा तो जल्दी किसी पर हाथ भी नहीं उठाएगा। समाज भी तरक्की करेगी, वो बच्चे की जिंदगी के अंदर प्रोग्रेस करेगा, और इलाके के अंदर तरक्की होगी, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कभी भी जिल्लत और रुसवाई की ज़िंदगी नहीं गुजारनी पड़ेगी। ये लंबे वक्त की बात नहीं है, मेरे ख्याल से वक्त काफ़ी हो चुका है, 3 बज चुके हैं, लोग सो रहे हैं, देखे सर नीचे ऐसे करके एकदम जा चुके हैं। इसीलिए गुजारिश करता हूँ, क्या मौलाना दुआ कर दिया जाए, मुझे भी चूँकि नींद आ रही और फिर पूरा सिस्टम चेंज हो चुका है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हम ईमान वालों को कुरान और शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और दूसरी, नहीं तो हम आपके हिसाब से नहीं कर सकते जलसा। हमारे सिस्टम में 5 घंटे लगेंगे जाने में, हमको वहाँ ट्रेन पकड़ने में। अब पूरी रात का जलसा, वो देख के सो रहे हैं, उनको बोले भैया उठिए, उठेंगे, फिर ऐसे कर लेंगे। 2-2 मुकर्रिर में पूरी रात का जलसा होता। आपके यहाँ निज़ाम बदलिए, जलसा पूरी रात का, जो आया है बाहर से वो अपनी सवारी पे आया है। सिर्फ बोलने से लोग सो रहा है तो बोलने की भी बेइज्जती होती है ना, सुन नहीं रहे आदमी। पूरी रात का जलसा जरूरी नहीं, या आपके सिर्फ ये कुछ इलाकों में, एक आपके इलाके में, एक हमारे इलाके में 4-4 रात का जलसा कर रहे हैं, पूरी रात का। अभी मेघालय में प्रोग्राम किया हूं, 4 दिन का जलसा, लेकिन रात को 12 बजे दुआ हो गई। वो ठीक है, उनका कहना ठीक है, जो लोग बाहर से आए वो कैसे जाएंगे। हर कोई टेम्पू लेके आया, पैदल नहीं आया, हर कोई सवारी लेके आया, या नहीं तो मस्जिद है, आराम कर सकते हैं। लेकिन लोग सो रहे हैं, वो देखिए वहां पर भी बैठ के ऐसे सो रहा है, ऐसे करके, बताइए। उनके सामने बात करके बात की तौहीन है, बेइज्जती। इसीलिए बड़ा लंबा सफर हमें भी तय करना है, हम लोगों पर भी रहम कीजिए कि भाई ये पूरी रात का जलसा करना है तो फिर 3-3, 4-4 मुकर्रिर को बुलाइए, उसके बाद फिर तकरीर कीजिए, बीच में वक्फा करके चाय पिला दीजिए, सब फ्रेश हो जाएंगे, फिर दोबारा बैठेंगे। कोई तहज्जुद पढ़ेगा, जिक्र अज़कार कराते रहिए ताकि नींद भाग जाए। लेकिन ऐसा नहीं, अभी करके 1-1.5 घंटा तकरीर हो जाएगी, चलिए अजान होगी, सब जाके सो जाएगा, फजर की नमाज कोई पढ़ेगा नहीं,
فجر کی نماز پڑھنا ضروری ہے، جلسہ اور تقریر کرنا ضروری نہیں. آپ فجر کی نماز چھوڑ دیں گے، اللہ آپ سے پوچھے گا کہ نماز کیوں نہیں پڑھی تھی. آپ تقریر نہیں کیجئے گا، اللہ نہیں پوچھے گا کہ تقریر کیوں نہیں کی تھی. اسی لیے جو چیزیں فرض ہے اس کو سامنے پہلے رکھیے تو برکت ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ بھائی 3 بجے 4 بجے 5 بجے رات تک جلسہ ہو، 12 ہی بجے تک کیجئے، 1 بجے تک ہی کیجئے. فریش ہو کر سب سنے گا اور اعلان کر دیجئے جلسوں کا کہ بھئی ہمارا جلسہ 1 بجے تک دعا ہو جائے گی. پھر دیکھیے کہ جلسہ بھی کامیاب، سب تازہ دم ہو کر سنیں گے. اس کے بعد پھر لوگ اپنے گھروں کو جائیں گے، سوئیں گے بھی، اٹھ کر فجر کی نماز بھی پڑھیں گے. یہ نظام بنائیے. یہ اچھا نظام میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ میرا تجربہ ہے، اس سے جلسہ کامیاب ہوتا ہے. وہ بس 2 بجے کے بعد چل رہا ہے، کچھ ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ادھر سو رہا ہے، کوئی ادھر جا کے چائے پی رہا ہے. اس سے بولنے کی، تقریر کی، قرآن و حدیث کی